So Mr. Zahir Khan owns a bungalow at Panvel near Mumbai. He is let out to Mr. Ashish, who has occupied it for residential purpose. The property is remained vacant for 2 months. ये वाला भी थोड़ा कल करें. See what is happening if there is a vacancy allowance. वैकेंसी मतलब आपको समझ में आता है 1 या 2 महीने तक भाड़े पे नहीं था. यस और नो? ठीक है. तो अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो रेटेबल वैल्यू दिया है वो कितने महीने के लिए दिया बेटा? रेटेबल वैल्यू मतलब म्युनिसिपल वैल्यू. ये 65,000 कितने महीने के लिए दिया है? This 65,000 is given for how many months? Tell me. Always for 12 months. Okay. This is also most reasonable rent. That is fair rent. That is also for 12 months. So most of the time, this is for 12 months. और suppose आप actual rent receive लेंगे only for 10 months. तो injustice हो जाएगा कि नहीं इन दोनों के लिए? ठीक है? So in such cases, what we need to do? We presume that we have received the rent for 12 months. Then we will take the gross annual value before vacancy allowance, and we will also compute gross annual value after vacancy allowance. ये दो चीज करनी पड़ेगी आपको. ठीक है? Gross annual value before vacancy allowance and gross annual value after vacancy allowance. ये एक थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है. और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आफ्टर वैकेंसी पीरियड क्या लोगे? 2 मंथ. तो आप जब भी रेंट रिसीवेबल होगा आप क्या करेंगे? 12 महीने के लिए लेंगे. क्यों? अदर डिटेल्स इज फॉर 12 मंथ. अनरियलाइज्ड रेंट इज आल्सो गिवन. म्युनिसिपल टैक्स इज पेड. रिपेयर्स रिनोवेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट? Because that is covered by standard deduction. That is covered by standard deduction. So 30% of net annual value is standard. उससे आप कुछ भी करो, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, कुछ भी चले. Interest on loan is given 16,000. Okay. Now here, see, try to understand, which also includes interest of the previous year. So interest of the loan is 16, which includes last year's interest. वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, because last year का interest का benefit we must have taken last year. So here the interest, this is only the 2 new adjustment in this question. This benefit he will not get. So only 10,000 will be allowed. तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है. कल वापस हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी. थोड़ा सा चेंज है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 129, मिस्टर जहीर खान. ठीक है? क्या डिफरेंस है वो देख के रखो. ओके, वी विल डिस्कस दैट. मिस्टर जहीर खान, व्हाट इज हैपनिंग हियर? So we will make the format. Kindly take down the format first. फॉर्मेट लिख लीजिए. नेम ऑफ एसएससी मिस्टर जहीर खान. इंडिविजुअल स्टेटस, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल. रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसलिए मैंने बोला था बीएलओपी को मैं अलग से समझाऊंगा, याद है?
So this is your VLO. बाकी सब एज इट इज जाएगा जो मैं अभी हमने देखा. Now this is VLO. Format is done. Then we'll go for next. Even whenever you are writing, it's very important that we should write for LOP or VLOP. Like this question was for LOP. This question is for VLOP. So let's proceed. What is rateable value? What is the meaning of rateable value? Is nothing but municipal value. Okay. Rateable value means municipal value. How much is rateable value given? 65,000. कितना लेंगे हम लोग? 65,000. Okay. Fair rent. Most reasonable rent of the locality. Is fair rent? Yes or no? Tell me. बार-बार वही Yes, sir. words नहीं देंगे. You have to understand with your logic also, with your common sense also. That is given as 60,000. अब क्या लोगे बेटा? What you will consider? 65. 65. एक सुर में सबने बोला. ठीक है? Consider 65. Standard rent वगैरह दिया है क्या? नहीं आएगा ना? No, sir. क्योंकि पनवेल वगैरह भी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, तो वो आएगा ही नहीं. आपको एग्जाम में भी नहीं लिखना है ये सारी चीजें. ओके. फिर डायरेक्ट आ जाएंगे एनुअल रेंट. हम लोग क्या करेंगे? एनुअल रेंट रिसीवेबल लिखेंगे. कितना है एनुअल रेंट रिसीवेबल? 60. 60,000. 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना आएगा? 60,000. ठीक है सर, 60,000 लिख लिया.
अनरियलाइज्ड रेंट कितना है बेटा? 5000. यस और नो? अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 5000. तो हमारा कितना आएगा? 55,000. तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 60 या 55? जल्दी बताओ. 55. 55 लेंगे सर. अब 55 और 65 क्या लेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू कंसीडर? 55 और 65 क्या लेंगे बताओ? 65. 65 सर. सर 65 में. अभी ये जो 65 है ना बेटा, दिस इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी अलाउंस. क्यों? क्योंकि हमने तो रेंट 12 महीने का लिया था, जबकि मेरा हाउस क्या था? 2 महीने के लिए तो वेकेंट था. सर आपने वेकेंट का कैसे ले लिया? तो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि हमको ऐसा ही करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज दिस इज गिवन एनुअल वैल्यू, मतलब 12 महीने के लिए. दिस इज ऑल्सो गिवन एनुअल वैल्यू, मतलब 12 महीने के लिए. तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा 10 महीने के रेंट से, तो ऑफकोर्स वो नीचे आ जाएगा. आएगा कि नहीं? तो अनफेयर आएगा. कंपैरिजन हो जाएगा. इसके लिए हम लोग जब भी वैकेंसी अलाउंस रहती है, हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि भाई 12 महीने के लिए मिल गया. ओनली फॉर कंपैरिजन, ओनली फॉर कंपैरिजन. ओके. तो अभी क्या आ Yeah. गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वैकेंसी आ गया. अभी लॉस इनटू वैकेंसी कितना है बताओ? वैकेंसी की वजह से 10,000. यस सर, वैकेंसी की वजह से लॉस इज 2 months and rent per month is sir given as 5,000. So for 2 months it will be 10,000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया, सब आ गया समझ में, और कुछ नहीं बचा इसमें. ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बस. तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज 10,000. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आफ्टर वैकेंसी कितना हो जाएगा बेटा? 55,000. बस आ गया. अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, फिर तो आप किंग हो गए. फिर क्या है? Less municipal tax. कितना है बेटा? 4,000. यस सर, 4,000. 51,000. नेट एनुअल वैल्यू. फिर तो क्या है? टाइम पास है. इसका कितना लेना है? 30%. कितना आएगा बेटा? 15,300. 15,300. और इंटरेस्ट कितना लेना है? 10,000. 10,000. बस हो गया, हो गया आंसर. 25,700. क्या था इसमें? कुछ था? Nothing. All of you please take down. Then I will give one homework. आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. और वो होमवर्क ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा. क्या क्लास वर्क ही कर लोगे? टाइम है ना आपके पास? थोड़ा देखो तो ये क्वेश्चन देखो जरा कैसे आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 Same है sir. सेम है, ट्राई करो. अच्छा कल करके पहला, दिखाते हैं. नहीं नहीं अभी करके दिखाते हैं सर. अभी देखो ये क्या है सर? ये क्या है? एलओपी है, इसमें वैकेंसी नहीं है. ये दूसरा वाला हाउस प्रॉपर्टी क्या है? वीएलओपी है. और तीसरा वाला क्या है? एसओपी है. एसओपी में क्या याद रखना है बेटा? एसओपी में क्या याद रखेंगे कि उसका नेट एनुअल वैल्यू विल बी निल. ये सब का कोई मीनिंग नहीं है एसओपी के लिए. ठीक है? एसओपी में इसका मतलब 0 था ना अभी अपने फॉर्मेट. ठीक है? और हो सकता है एक इंसान के पास 3-3 घर हो सकता है. वो तो सौरभ है, सौरभ गांगुली, उसके पास बहुत सारे घर है. ठीक है? थोड़ा ट्राई करो. बट टुडे वी विल नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस.
Just see how much you can do. सर अभी ट्राई करना है। Anyone got the answer? Please let me know. You have 3 minutes. Otherwise, I'm going to then discuss this question and then we'll wind up. सर हाउस 1 का आया।
So let us verify now how much you have written. So Mr. Saurav has 3 houses. It is possible. Any person may have more than 2, 3, 4, any kind of houses. These are the details regarding previous year. House 1, rateable value, fair rent, rent is given, vacancy is not there. So it is pure LOP. House 2 is 4 months for vacancy. So it will be VLOP. And house 3 is self-resident. That's why you have not got any rent. This is SOP, self-occupied property. Okay. It is not feasible now for you that you will get anything which is 1999 because I told you here, if the loan is taken before 99, you will get only 30,000. So this is hardly 1% which is given the maximum limit of 30,000. So here you will not get the benefit of 35,000, only 30,000. Similarly, if it is 2014, 1,50,000. But after that, if you have taken in SOP, it will be up to 2 lakh. Even though interest will pay 5 lakh, up to 2 lakh you will get the benefit. Is this clear? So that is maximum ceiling what you will get for SOP. So all kind of property we have. We have this, this and this. All kind of property. So Saurav, this question number 8, page number 130. Let us talk about first LOP. Okay. Clearly it is given. What is rateable value? 60,000 and fair rent 50,000. क्या लेंगे आप लोग? Fair rent 50 दिया हुआ है और म्युनिसिपल वैल्यू 60 दिया है. क्या लेंगे बेटा आप लोग? 60,000. 60,000. सर 60,000. फिर वापस में बोला स्टैंडर्ड रेंट वगैरह तो देगा नहीं. Okay, so we need to ignore. Now delete this two columns. ठीक है. फिर एनुअल रेंट दिया हुआ है इसमें. Because there is 6,000. per month. 72,000. Yes sir. सर ये डायरेक्टली 72,000 आ जाएगा. डिडक्शन होगा नहीं सर. ठीक है, कोई बात नहीं. अनरियलाइज रेंट तो है ही नहीं, नॉट अवेलेबल, कुछ आएगा नहीं. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर should also be same. 72. 4,000 tax. 4,000 सर टैक्स आ जाएगा. तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 68,000. 8,000 आ जाएगा सर. उसका 30% स्टैंडर्ड 20,400. 20,400 आ जाएगा. एंड इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर कितना दिया बेटा? 20,000. 27,600. तो टैक्सेबल वैल्यू आएगा 27. वेरी गुड. तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट VLOP. VLOP में क्या होगा सर? दिया हुआ है आपने, एक 80 है और दूसरा भी 80 है. तो अब क्या करोगे बेटा? 80 लेंगे ना सर? यस और नो? 80. फिर रेंट रिसीवेबल कितना है? 96,000. 8,000 है तो 96. 96,000 हो जाएगा सर. अनरियलाइज रेंट नहीं है सर, कुछ भी अनरियलाइज नहीं, नॉट अवेलेबल. तो यही आएगा. बिफोर वैकेंसी इज आल्सो 96. अभी सर इसमें लेकिन 4 महीने का वैकेंसी है तो उसका लॉस आएगा सर इसको, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए. तो कितना आएगा बेटा लॉस? 8,000 एक महीने का. तो 4 महीने का कितना? 32 आ जाएगा सर. इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा ना बेटा, लॉस. 64 हो जाएगा. 64,000. सर म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है सर. इसने भी 4,000 sir. भरा है. दे देते इसका भी म्युनिसिपल टैक्स.
तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 60,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा? 18,000. 18,000. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है सर 0, इसको तो No, sir. बेनिफिट मिलेगा। कितना आ जाएगा बताओ? 42. 42,000. ठीक है, अब आ जाओ एसओपी पे। मैंने क्या बोला बेटा, एसओपी के लिए आपको नेट एनुअल वैल्यू ही क्या लेना है अंडर सेक्शन 23? 30,000. नहीं, वो तो इंटरेस्ट लेना है बेटा, ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू ही नील होगा इसका। एसओपी में आपका नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है? नील हो जाता है। अंडर सेक्शन 23 यहाँ भी लिख देता हूँ तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ भी इसका नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? नील हो जाएगा। अगर ये नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, वो भी नील हो जाएगा ना। यस और नो? इंटरेस्ट मिलेगा उसको। इंटरेस्ट कितना है बेटा? 35 मिलेगा क्या? जल्दी बताओ। एज द लोन इज टेकन इन नहीं, sir. 1998 कितना मिलेगा बेटा मैक्सिमम? मैक्सिमम कितना मिलेगा 30. सर? मैक्सिमम 30 मिलेगा। तो इधर क्या हो गया? नेगेटिव इनकम आ गया। ऐसे सर? ऐसे सर, ऐसे देखा सर? है कि नहीं सचिन? तो समझ में नहीं आया सर। अरे अगर लोन बिफोर 1999 के पहले लिया तो मैक्सिमम कितना मिलेगा तुमको डिडक्शन? 30। 2014 तक लिया तो कितना मिलेगा? 150। उसके बाद लिया तो 2 लाख। 2 लाख। उसमें कितना लिया है? 1998 में ही लोन लिया है तो उसको कितना मिलेगा? 30,000। इसके लिए 30 मिला। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस। यस और नो? इसको बोलते हैं सेट ऑफ। इंट्रा हेड भी सेट ऑफ कर सकते हो, इंटर हेड भी सेट ऑफ कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर में भी आप उसको लेके जाके फिर सेट ऑफ कर सकते हो। दिस ऑल आर इनकम टैक्स बेनिफिट्स which is apart from your syllabus, but मैं ये इतना तो है ही आपके पास। तो 27 plus this minus this कितना आता है देखो? You get 39,600. Am I right? हाँ या ना? हाँ सर। That is your Yes, total sir. income from house property. ठीक है, आज के लिए इतना ही। या Remaining question you can practice with your own if you want. Okay, and then we will see later on. ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, आपसे आएगा।
सॉल्ट ट्राई करो, अनसॉल्ट ट्राई करो, ठीक है. See you tomorrow morning. Thank you very much for giving your extra time for today. But I feel now we are comfortable with house property. House property में भी अपने को problem नहीं आएगा. Same way we will take one lengthy session of business and profession and we'll finish it up. And same way we'll do for other heads of income as well. Thank you once again. Take care. Be at home. Take care of yourself. Take care of your family members, and try to get vaccination as early as possible. Okay.